Good evening. And of course, good evening. So as I said today, of course, is one of those club sessions that we have, which are always so beautiful and so nice, and we really look forward to it. And our nature club ka session hai, which Ratna ji has been taking care of. So just to begin, live in each season as it passes. Breathe the air, taste the fruit, and resign yourself to the influence of the earth. Nature is said to be one of the precious and the best gift given by God to all of us. We all are really blessed to have such beautiful things that surround us. Nature is like a best friend that provides us all the resources to live on this earth. Unfortunately, this environment has come under serious threat. Most noteworthy, this damage risks the survival of living things on Earth. So today, the Nature Club brings you a very inspiring session on blessing of nature and how to save it. So without any delay, Ratna ji, over to you, and welcome here as a moderator, and wonderful to have you. So you're looking very nice also. आज बिल्कुल moderator वाली seat पे आप बैठी हैं. So over to you. यस सबका स्वागत है नेचर क्लब में, मेरे सारे भाई बहनों का, अपने मुहा फ्रेंड्स का। मौसम बहार है, गुल है, गुलजार भी है, कोयल की कुहुक है, पपीहे की पुकार भी है। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। तो हमारा भारत देश प्रकृति से भरा हुआ, इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर चारों तरफ फैली हुई हरियाली। अब संजना, प्लीज शो माय पिक्चर्स that I send you. हेलो संजना। यस, ये पारिजात है, हर सिंगार, इसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। इसके फूल, पत्ते, छाल सभी कुछ औषधि के रूप में इस्तेमाल होते हैं। गठिया में बहुत उपयोगी है, बालों में सीरम के रूप में काम आता है, और क्रॉनिक फीवर में भी इसकी पत्तियों का रस देने से बुखार उतर जाता है। इसको नाइट जैस्मिन भी कहते हैं, और इट बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा, हमारे शिव जी भगवान जी से ये रिलेटेड है, क्योंकि जब वो करते हैं हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो ये फूल पूजा में चढ़ाए जाते हैं, रुद्राभिषेक में। अब आप वो दिखाइए, ब्लू वाला। हाँ, ये है अपराजिता। इसकी और पारिजात की, दोनों की हर श्रृंगार की इतनी खूबसूरत महक होती है। ज्यादातर ये रात को ही खिलते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लू बेल भी कहा जाता है, बटरफ्लाई पी भी कहते हैं, ब्लू क्लाइटोरिया फ्लावर्स भी कहते हैं। और अब वो दिखाइए हिबिस्कस। ये बहुत इसका सुंदर कलर है, ब्लू एकदम। ये हिबिस्कस है, इसमें विटामिन सी, मिनरल और हर्ब्स होते हैं, फैट्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। डायबिटीज में भी ये फायदा करता है, कई रंगों में पाया जाता है, डिफरेंट कलर्स हैं इसके। इसका रेड कलर भी दिखाइए, वाइट भी है। ये हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, मेरठ में, साकेत में। ये बरगद का पेड़ है, ये मैंने बोनसाई बनाया है। ये 16 साल का पेड़ हो गया है। इसको बैनियन ट्री भी कहते हैं, और इसकी एरियल रूट्स होती है दैट ग्रोज डाउन इनटू द सॉइल एंड फॉर्म एडिशनल ट्रंक्स। इंडियन नेशनल ट्री है ये, और इसको कल्प वृक्षा भी कहते हैं।
विश फुलफिलिंग ट्री। और ये पेड़ ऐसे हैं, पीपल और बरगद, जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करते हैं। थैंक यू। अब आप आगे आएंगी हमारी कमलेश चांदना जी। डॉक्टर कमलेश चांदना आइए। डॉक्टर कमलेश चांदना। हेलो। हेलो, आइए। Hello, my Amoha friends. Good afternoon. All of you are very learned, excellent singers and full of qualities. I am neither a singer nor a good speaker, but I just take an opportunity to speak before you. Today's topic is blessings of nature and how to save it. Just a small poem depicting the blessings of nature I am presenting before you. The sun graces us with its enchanting glow. The sun graces us with its enchanting glow as the orange and pink dominate the sky. As the orange and pink dominate the sky, marking the dawn of another beautiful morning. Marking the dawn of another beautiful morning, wistful birds serenading soothing melodies. Wistful birds serenading soothing melodies. The bright pink and yellow flowers. The bright pink and yellow flowers spread their buds, blooming amongst a field of vibrant display. Blooming amongst a field of vibrant display. Humming bees rush to collect pollen. Humming bees rush to collect pollen. A mystical cascade, wistfully winds, water ripples against the rocks. A mystical cascade, wistfully winds, water ripples against the rocks. A steep slope overlooks the rocks. The striking mountain, mounted on a top, lies a pillow of clouds. The striking mountain, mounted on a top, lies a pillow of clouds. But the ominous fumes entraps wafting from the grayness that lies across the grey tones of factories disrupts the blessings. But the ominous fumes entraps wafting from the grayness that lies across the grey tones of factories disrupts the blessings, filling people's lungs with unfiltered air. Filling people's lungs with unfiltered air, replacing the enchanting glow to dark, melancholic, thick clouds blocking the view. Dark, melancholic, thick clouds blocking the view. Melting the majestic glaciers floating against the mountains. Melting the majestic glaciers floating against the mountains. The water rises as glaciers are lost within the sea. The water rises as glaciers are lost within the sea, as crashing waves envelop the shores. As crashing waves envelop the shores, alas, alas, nature's blessings drift away at sea. Nature's blessings drift away at sea. As factories become more automated and more products are consumed, factory fuels emitted from factories that generate our household energy contribute to acid rain and smog formation. Heat trapped by these fuels in the atmosphere has an adverse effect on nature's gifts to humans. Humans can, however, take a variety of steps to prevent the destruction of nature's blessings, including recycling
reducing and reusing refurbished items, as well as volunteering to clean up. By picking up litter in nature reserves, cycling to closer places, and eating sustainably produced foods, we can decrease our carbon footprint and the consumption of fossil fuels. Together, our efforts will unify and we will be able to protect nature's blessings for the generations to come. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा बोला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर कमलेश जी, बहुत अच्छे वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत पोएम था। बहुत बढ़िया। All you have said in this poem. Nature's beauty. अब प्रवीण जी को बुलाती हूँ मैं। प्रवीण जी ये विचार प्रस्तुत करेंगी नेचर पे। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू रत्ना जी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए, थैंक यू। अपनी मधुर आवाज में हमको पढ़ के सुनाइए क्या। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं प्रकृति के बारे में कुछ अपने विचार रख रही हूँ। वो जो इस प्रकार है, प्रकृति से ही हमारे जीवन का आधार है। इसकी कृपा से हमें जीवन मिलता है। प्रकृति हमें सदा कुछ न कुछ देती ही रहती है। इससे हमें हवा, पानी, फल फूल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और जीवन में के सभी प्रकार की वस्तुएं ये हमें उपलब्ध कराती है। हमें प्रकृति से निरंतर आगे बढ़ते रहना सीखना है। इसके हर रूप को अपने जीवन में ढालकर अपने आप को प्रकृति का स्वरूप बनाना है। जैसे सूरज हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में चमक कैसे आए, और चंद्रमा हमें सिखाता है कि कैसे शांत रहें और अंधेरे में भी अपनी चमक कम ना होने दें। पेड़ हमें सिखाते हैं कि हम अपने आश्रय और भोजन को दूसरे लोगों से बांटें, और नदी हमें सिखाती है कि जैसे चुनौतियां आए लाइफ में, उनका सामना करते हुए सदा आगे बढ़ते जाएं। वेरी गुड। और पर्वत हमें सिखाते हैं कि सदा अपना गौरव बनाए रखो और जीवन में सभी ऊंचाइयों को छूने की अभिलाषा रखो। फूलों की सुगंध हमें सिखाती है कि अपने स्वभाव को सुगंधित और मधुर हमेशा रखिए और अपनी मधुरता और प्यार उसको बिखेरते रहिए। ठंडी पवन के झोंके से हमें सीखना है कि सबको प्रेम करना और सबसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना। इसी प्रकार प्रकृति का हर रूप हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। यदि हम ध्यान से कभी प्रकृति से बातें करें तो मानो वह हमसे कुछ कहती है। तो वो क्या कहती है? ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहते हैं। ये प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। ये खूबसूरत चांदनी रात, ये तारों की झिलमिल करती बारात, ये खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूल, ये उड़ती हुई धूल, ये कुछ कहना चाहती है। प्रकृति भी हमें कुछ कहना चाहती है। ये नदियों की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वतों की चोटियों में झिंगुर की सीटियां कुछ कहना चाहती है। यदि आप इन सब की बातें समझें तो इन्हें सुनकर हमें लगता है कि वे हमें कुछ उनके लिए करना चाहिए। वे हमसे भी कुछ उपेक्षा रखते हैं। मानो प्रकृति कह रही है कि मानव कितना, मैं आपका कितना ध्यान रखती हूँ। जो उसे अपने सुंदर रूप को, उसी प्रकार आप भी मेरी सुंदरता को बनाए रखें और इसे विनाश और प्रदूषण से मैला ना करें। जैसे ये हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार हमें भी इसके हर रूप को सुंदर और खूबसूरत बनाए रखना है, ताकि हम इस प्रकृति से आनंद ले सकें। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने इंग्लिश में बोलना चाहती हूँ। एक मिनट में।
The earth says, of all the planets, I am special. I am the Mother Earth, filled with water, air, and life. Human, trees, birds, water, animals, and wildlife. I spin and turn all year around the orbit to give you all the seasons and the climate. You people are my land. Use my land, air, water, and soil, but keep on filling it with litter, allowing it to spoil. I provide you air, food, and home to live. With greedy lust, you destroy the nature I give and plot your own nature's death. The air you fill with smoke makes my breath choke. You make my heart fill with strife by cutting down the green forests and pushing up the greenhouse gases. What was once a clean sea and pure soil, it now all barren, clogged with waste and oil. How long can I stand the trouble? I start to scream and tremble. I give you all what I have, unto my end, but it is in your hand to defend and mend. Thank you. Very nice. बहुत अच्छे बहुत ही खूबसूरत, परवीन अति सुंदर, as usual short, brief and to the point. really I Thank you. appreciate. बहुत बढ़िया, I appreciate. बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। हमारी As प्रकृति usual, माँ बहुत गॉड मदर है हमारी, परवीन को बचाने के लिए Yes, हमको we have to save बहुत you. कुछ करना। यस, नेचर का really नेचर good. तुमने बता दिया परवीन बचाने के लिए हमको so well presented, so well presented, बहुत अच्छे, Very nicely presented. बहुत बढ़िया very well Thank presented. you. Thank you so much. बहुत अच्छे परवीन बहुत जी, very अच्छे। good. very good. Thank you. तो प्रवीण नेचर का नेचर बता दिया है Very नेचर का well नेचर said. Choice ये of तुमने poem was बताया। also very good. This is what बहुत I बढ़िया। also believe in it. We should Yes. be, बिल्कुल हमको अपने yes, बचाना one है with the nature. धरती को, नेचर को। बहुत यस, खूब, बहुत खूब। Choice of poem was very good. अब Thank you. सुरेश Thank जी को बुलाती हूँ। सुरेश मल्होत्रा जी, आइए आप अपने विचार प्रस्तुत करिए। स्वागत है आपका सुरेश। इमोहा की सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा सप्रेम नमस्ते। मेरी आज वार्ता का विषय है प्रकृति का अनुपम धन, पशुधन गाय, जो कि करुणा की मूर्ति। प्रकृति के वरदानों को मैं कहाँ तक गिनाऊं, वर्णातीत है। यही वरदान जीवन के आधार हैं। वैसे तो प्रकृति ने अनंत पशु पक्षी दिए हैं, जिंदगी में इन सब का अपरंपार लीला है। सभी उपयोगी हैं, सभी मानव जीवन में रंग भरते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। सभी के संतुलन से ही सृष्टि वरदानों की भंडार बन पड़ी है। किंतु सभी पालतू जानवरों में गाय का स्थान सर्वोच्च है। वेदों में भी कहा गया है, माता स्वर्गस्य सोपानम, गाव है स्वर्गस्य सोपानम, गाव है स्वर्गपि पूजिता, गाव है देव्यो नमः, देव्यो कश्चित परम स्मृतम, अर्थात सबसे ज्यादा जो स्मृति की जाती है वो गायों की ही है। अर्थात गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है, जो स्वर्ग में भी पूजनीय है और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। गौ माता से बढ़कर दुनिया में और कोई पशु नहीं है। गौ माता हमारी माता है, राष्ट्र माता कहना चाहिए। गाय के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माता सर्वदेवमयी है। गाय के सारे अंग बहुत सुडौल और सुंदर होते हैं। हर मंगल की गाय जो है आधार है। सब चीजों में इसका जो पंचगव्य है वो काम आता है। यहाँ तक कि गाय के उत्सर्जित पदार्थ गोबर मूत्र का भी प्रयोग दवाइयों आदि के रूप में बहुपयोगी सिद्ध होता है। गाय माता की आंखें बहुत कोमल भावपूर्ण होती हैं। गौ माता को देखते ही प्यार की मूर्ति नजर आने लगती है। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता के कुबर पर यदि हम हाथ लगाएं तो वास्तव में ये हमारे सभी रोगों का नाश कर देता है। गाय के दूध में ऑक्सीजन होता है,
वो छोड़ती भी गाय लेती भी ऑक्सीजन है और छोड़ती भी ऑक्सीजन है। तो ये गाय जो है सर्व मंगलकारी है, जिसकी सेवा करके नर भव को तर जाता है। सब देवों का अंश समेटे है गौ माता, जिसकी सेवा करके नर भव से ही तर जाता। वेदों में लिखा है गौ माता की चारों चरणों के बीच में निकलकर परिक्रमा करने से इंसान भव मुक्त हो जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ये गोचारण लीला की। इस दिन को लोग गोपाष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। गाय का दूध देवताओं और मानवों के लिए अमृत जैसा होता है, पुष्टिदायक और सुमतिदायक। इसका पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र सब वरदानमय है। गाय जो जहाँ भी चले जाए वहाँ मंगल मूर्ति का आधार बन जाता है। इनके सुंदर खुरों से भी जूते बनाए जाते हैं। गाय के दुग्ध उत्पादन में भारत का सर्वोच्च स्थान है। गाय की कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मुख्य नस्लों में साहिवाल, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। दक्षिण काठियावाड़ में थार पार कर राजस्थान के जोधपुर में, जैसलमेर और कच्छ के इलाकों में पाई जाती है। शिशु को भी मातृ का दूध, गाय का दूध माता से भी अधिक पौष्टिक करता है। शिशुओं, वृद्धों और रोगियों को विशेष रूप से गाय का दूध ही पीने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक भी इसके गुणों को बयान करते हैं और आयुर्वेद में तो इसका ही प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। जिसको अनिद्रा का रोग हो उसको इसके दूध के प्रयोग से उसकी यह कठिनाई दूर हो जाती है। दूध हृदय रोग में हमें सबको बचाता है। मैं तो ये कहूंगी गाय का दूध दाद खुजली से भी हमको उपयोगी है। प्यारी गाय, दूध तुम्हारा अमृत जैसा, सूरत तुम्हारी ममता सी, गव्य तुम्हारा भव्य बनाता, धरती तुमसे सुखद सी, बलाए टाल शगुन बनाती, तुम कान्हा की दुलारी सी। गाय सच में कभी भी आपके दरबारों में आए, दरवाजों पे आए, कहीं भी आए, उन्हें कभी नहीं मारना चाहिए। भगवान का दर्जा दिया है कृष्ण भगवान ने गौ माता को। जूठी रोटी, गंदी रोटी, बासी रोटी कभी नहीं देनी चाहिए, ये सब पाप होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारतवर्ष में गाय, गीता, गंगा और गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है। तो जितने भी ये गा से शब्द होने वाले हैं, ये भारतवासियों के लिए बहुत ही मंगलकारी है। घर की रसोई में पहली रोटी गाय को दी जानी चाहिए। यह मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। गायों की रक्षा प्रकृति का सम्मान है। अगर हम प्रकृति को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें सभी गायों को प्यार से रखना चाहिए, दुत्कारना नहीं चाहिए। दूध ना दे तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लोग इस बात को ध्यान नहीं करते। कृष्ण भगवान ने एक बार गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए हैं ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, लेकिन गाय रानी तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, कृष्ण कन्हैया, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें विषैला दूध पिला दिया, तब भी तुमने उसे माँ का ही रूप दिया। तो मैं मनुष्य जो मेरा दूध पीते हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं? मैं उन सबको पुत्र पुत्रियां ही समझती हूँ। इतनी प्यारी गायों के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं कि हम इनको पूजें, बचाएं, इनका मांस ना खाएं, ना विदेशों में मांस भेजें। गौ माता बचेगी तो हमारा देश बचेगा, हमारी प्रकृति बचेगी, देश की सभ्यता और संस्कृति बचेगी। जो गाय दूध ना दे उन्हें घर से ना निकाल देना बहुत ही बदतमीजी है। सच में बहुत बुरा, अमानुषिक। गायों के लिए अधिक से अधिक गौशालाएं खुलनी चाहिए। सरकार के साथ संपूर्ण समाज का भी कर्तव्य है कि किसी प्रकार भी गायों का शोषण ना हो। गायों का संवर्धन हमारे देश के लिए प्रमुख उद्देश्य है, ध्येय है।
इन कामधेनुओं का कल्याण आवश्यक है। सभी गायों को हमें उन्नयन करना चाहिए। सुंदर बैल भी तो यही देती हैं, हमारी खेती भी तो यही करवाती हैं। बैलों को भी पूजना चाहिए। नंदी बैल महादेव की सवारी है और शैलपुत्री भी बैल की सवारी करती है। हम सबको गोपालक बनना चाहिए। इनके आगे प्लास्टिक में डालकर आटा आदि नहीं देना चाहिए। प्लास्टिक इनका दम घोट देता है। कई लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए गायों को सुई डालकर गुड़ खिलाते हैं कि उनकी डेयरियां चले। ये महापाप है। गायों की हत्या करना भीषण पाप है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा आ रही है। हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम गायों का सम्मान करें। जितने अध्यापक हैं, जितने माँ बाप हैं, वो अपने पोते पोतियों को, बच्चों को गायों का महत्व बताएं, जिससे वो भविष्य में गायों को सम्मान दे। अंत में ये मैं कहूंगी, सुरक्षा गायों की हमारे जीवन का सही अर्थ है। इस सुरक्षा के बिना हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। गायें हैं अति श्रेष्ठ, लावण्यमयी और मनोहारी, ना अन्य कोई प्राणी ऐसा। हम जाए इन पर बलिहारी बलिहारी। बहुत सुंदर, बहुत एक्सीलेंट, बहुत उपयोगी ज्ञान सभी बहुत कुछ। अच्छे। गाय के गोबर से Excellent, खाद बहुत बनती है, साधारण वर्ड हमारे खेत बहुत से चलते हैं। आपके बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेश so जी। much, मन so तो much, करने हमेशा ही madam। एडमायर किया आपके आपका बोलने का। तो सब भाई बहुत बहनों अच्छा का है। प्रोत्साहन ही यहाँ आता है। बहुत बहुत अच्छे। ज्ञान का भंडार। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर का। बहुत बढ़िया। वर्ड में आपने बहुत कुछ सुरेश कहा। बहुत अच्छा था। So much. राम Thank साहब, you. आप सबका स्वागत है। a big round of applause. सुरेश जी, ये ज्ञान का भंडार कहाँ भर रहा है आपने? कुछ नहीं है। मैं गायों को सच में बहुत ही करुणा की मूर्ति मानती हूँ। आप बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी नाइस। शर्मिष्ठा जी आइए, आपका नंबर आ गया है। शर्मिष्ठा जी अपने विचार प्रस्तुत करिए। शर्मिष्ठा भवसार, आज शायद पहली बार या दूसरी बार नेचर क्लब में ही बोला आपने। हाँ आइए, स्वागत है। अमित खुसरो ने कहा है, अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा भावसार बोल रही हूँ। आज मैं आपको धरती हम स्वर्ग कैसे बनाए रखे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। कुदरत ने हमें शुद्ध हवा, पानी और जमीन दी थी, लेकिन अपने स्वार्थ के खातिर हमें अशुद्ध बना दिया, जिसकी वजह से आज दुनिया में इतनी महामारी फैल रही है। वायु प्रदूषित होने की वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग का अनुभव कर सकते हैं। ग्लेशियर पिघलने लगी है, समुद्र का जल का स्तर बढ़ रहा है और इसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत सारे समुद्र के पास के शहर जल में समाहित हो जाएंगे। पेड़ काटने से बारिश कम होती जा रही है और गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसलिए अभी से जागरूक होकर प्रदूषण रोकना है। प्रदूषण क्या है? वातावरण में हानिकारक जीवनाशक पदार्थों को एकत्रित होते हैं, इसे प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जमीन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बहुत सारे प्रदूषण है। लेकिन जिस पर हमें काम करना है, ये सब गैस, धूल, प्लास्टिक जैसे पदार्थ से होते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण अधिक जनसंख्या, वाहन, असंतुलित औद्योगिकरण मुख्य कारण है। गैस जैसे CO2, CO, SO2, Cl2, धूल, धुआं रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होती है। इसकी वजह से होता है धुआं, धूल, सबकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण की हानियां, सांस संबंधी रोग होते हैं, हृदय रोग, आंखों में जलन, पौधों की आयु में कमी और कैंसर जैसी बीमारियां
होती है। प्रदूषण पर नियंत्रण। कारखाने को धुनी आबादियों से दूर रखे, लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करे, नगर में आसपास पेड़ पौधे उगाए, औद्योगिक यंत्रों से फिल्टर आदि का उपयोग करें। घर से निकला गंदा पानी, गटर से निकला गंदा पानी नदी तालाब को जल को अशुद्ध करता है। फैक्ट्रियों से केमिकल वाला पानी निकलता है, वो भी पानी को अशुद्ध करता है। प्रदूषण रोकने का उपाय। गटर के पानी का निकाल उचित तरीके से करना चाहिए। उद्योग से निकला पानी का शुद्धिकरण होना चाहिए। तालाब के आसपास नहाने का और कपड़े धोने पर नियंत्रण होना जरूरी है। प्रदूषण पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कूड़ा कचरा विधिवत निकाल करना चाहिए। कीटाणुनाशक दवा का उपयोग कम करना चाहिए। गटर का पानी का विधिवत निकाल करना चाहिए। इस तरह हमें प्रदूषण को नियंत्रित करके इस पृथ्वी को हमें फिर से रहने लायक बनाने है। इससे आने वाली पीढ़ियों बहुत फायदा होगा, इनके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अंत में मैं सबको आवेदन करती हूँ कि स्वच्छ भारत का अभियान को सरकार को हमें साथ देना चाहिए। नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी ज्ञान दिया आपने भावना जी, बहुत अच्छा। शर्मिष्ठा जी बहुत अच्छे भावना जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शर्मिष्ठा जी बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और वेरी वेल प्रेजेंटेड। जो हमारी धरती है उसको नदियों में पानी डाल रहे हैं, गटर का बहुत नाले अच्छा सब हुआ। नदियों में गिरते हैं, वो बहुत ही हम लोग गलत काम करते हैं, उससे पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है नदियों में। अब मैं मंजू आर्य जी को बुलाती हूँ। मंजू आर्य जी, आप अपने विचार प्रस्तुत करिए। स्वागत है आपका। मंजू आर्य जी। धन्यवाद रत्ना जी, धन्यवाद फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओह, माय प्लेजर। I would say कि our poets have described that nature and God are the same thing. God has transcended into nature, so they consider nature and God only one thing, and nature consists of so many things. All the greeneries, trees, rivers, lakes, mountains, flowers, and animals. They may be wild animals and other domesticated animal, whatever they may be. So there are many big animals, there are very tiny animals, but nature is so magnanimous that it gives all equal treatment, like God gives to all of us. It considers every creation of it as equal. May it be a tiny creature or elephant or lion or cow, anything. So I will say कि even we should follow the दोहा of रहीम जी कि रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आए सुई क्या कर सके तलवार। तो यही बात है कि भाई हम कई बार बड़े बड़े के जो बेनिफिट देखते हैं, जो हमें क्लियर होते हैं, हम उनको देख के और सारा भूल जाते हैं कि भाई कौन हमें क्या फायदा दे रहा है। लेकिन बहुत छोटे हमारे क्रिएचर हैं जो हैं इंसेक्ट्स, और उनमें भी हैं पॉलिनेटर्स, बीज को हम किसी भी तरह का भी इम्पोर्टेंट नहीं समझ सकते, बिकॉज बीज आर अमेजिंग इंसेक्ट्स दैट हैव ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। वेरी गुड। They are hard-working creatures that underpin the sustenance of life on this planet Earth. However, we have to dispose them due to unfavorable environments leading to massive deaths of these bees. But we should cherish them because they are so much beneficial for the mankind, and these benefits most of us know that they give us honey. They give us honey, but most important contribution is pollination. If they wouldn't have pollinated the plants, they wouldn't have pollinated the flowers, they wouldn't have pollinated the wild plants, I don't visualize how this earth will be like.
because honey they collect from the pollens of the flowers, and the collectors give it to the processors bees, and processor bees again put it into the hive. And Rani bee, she doesn't do anything, but her assignment is to look after all the process. And when Rani bee lives for 2 years, these worker bees, they just live for 2 or 4 months. So see how karmashil these bees are. They constantly go on working, and they are so united that we should take lessons from their life. So they travel for miles, they travel for so many long distances just to find the pollens. And when they look for pollen, they take pollens from one flower and put it into another, and thus fertilization takes place between food crops. As a result, we enjoy so many foods like cherries, apples, avocados, almonds, and berries, even coffee, cocoa. All these things we get due to these bees. If these bees would not have been there, we would have never tasted such things. So if scientists have even taken their help to fertilize, to pollinate certain plants which are not being pollinated by any insect, and these plants are being experimented for pollination by bees, so that we get some huskberries. Huskberries are very crucial for maintaining health and immunity of mankind. They have got so many antioxidants. So second thing is that apart from honey and apart from pollination of fruit plants, they pollinate the wild plants also. The wild plants are pollinated, then plants grow, breed, and give fruits. And so many animals thrive on these wild plants. If these animals don't thrive on these plants, what will we do? Mankind cannot do without these animals, because we get milk from them, we get meat from them, we get so many other products, leather and wool and so many things. So life is not possible without the bees. Without bees, if bees would not have been there, we cannot visualize the picture of the earth. Once Albert Einstein said, if the earth is cleared of the bees, then not more than 4 years will be left for the mankind. That means the whole mankind will be wiped off. So this thing actually I didn't know, and in these years of my old age, I have come to know such important facts about these bees. मधुमक्खी के छत्ते जैसे सपने होते हैं हमारे बहुत, और पाना भी मुश्किल होता है, पर एक बार पूरा हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है. मधुमक्खी से ही हमें सीखना चाहिए कि जितना how much honey they need, they make much more than that. We human beings don't do like that. Once our need is met with, we don't consider the need of others. So in this way also we can appreciate bees. है बहुत वो शुद्र सर्जन, है इरादे नेक इसके, घूमती स्वच्छंद वन वन, कर्म है निस्वार्थ इसका, कुछ नहीं निज हेतु संचन, चल रही नित वो निरंतर, वो रुकी तो खत्म जीवन, चुन रही देखो निरंतर, पुष्प से मकरंद कनकन, वंश से अपने बंधी है, पर नहीं है कोई बंधन, काश इससे सीख पाते वंश का संगीत पावन, कर्म योगी है ये मधुकर, कर्म ही सदुपाय भूषण. तो अगर वाकई हमें शहद जैसा परिणाम चाहिए तो हमें मधुमक्खियों की तरह एक होकर रहना चाहिए और निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए. मधुमक्खियों से सिर्फ यही नहीं मिलता, हमें जो ये बनाती हैं, वैक्स बनाती हैं, दिस वैक्स इज यूज्ड इन सो मेनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यूज्ड इन सो मेनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर स्किन एंड फॉर मेकिंग दैट कैंडल्स. So sir, they are very useful creatures, in fact, though very tiny, but very useful. Thirdly, they provide employment to so many people. Nowadays, beekeeping is a profession. People keep bees just for the business, pollination,
pollination. So many people work in these bee. Our duty is that we should promote these beekeepers. We should purchase honey from them only, and these beekeepers should they make certain lines of the flowers in their fields so that bees thrive on that. They collect pollens from them. So that's it's our duty that we should support these local beekeepers, so that, and most importantly, preservation of these bees. We should not use those insecticides, those harm the bees, because bees are most of the times we see due to pesticides these bees are harmed, they die. And in USA it was observed that when the bees numbers of bees was decreased, the production of the fruits was also retarded. So we can well understand their utility, and we should take such measures that such type of dangerous insecticide should not be used. We should be ambassador for this purpose, that we should teach, we or government should teach the farmers and other beekeepers that they should use other methods to for pesticides. Chrysanthemum is a flower that is a natural insecticide, and other fumes and all. So I would insist on this thing that bee preservation is a very important step in our life, and we should advise others also that bee royal jelly bhi hoti hai. There is one royal jelly which is produced by these bees, and that is royal jelly. Name is that royal jelly they make, but that is used for the queen bee. Yes. When she is about to die, that is given to her, and her larvas are given to be prepared for the next journey of their life. So thus I cannot enumerate so many benefits of bees, but I think कि bees छोटे छोटा पैकेट और बड़ा पटाखा वाली बात है. Very good. बहुत ही सुंदर. इतना इंफॉर्मेशन कभी नहीं, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल नहीं पता थी. A big round of applause. Very good, Dr. आपने कमाल से. Very information. मक्खी ना हो तो हमारे जीवन में शहद कहाँ से आएगा? हमारे जीवन में शहद ही नहीं रहेगा, रस नहीं, मधुर रस नहीं रहेगा. So informative. मंजू जी बहुत धन्यवाद. मंजू जी बहुत धन्यवाद. डॉक्टर मंजू, एक्सीलेंट टॉक. धन्यवाद. अब मैं सविता गुप्ता जी को बुलाती हूँ. ये छुपी रहती हैं पीछे, बड़ी रिक्वेस्ट करी इनसे. आइए सविता जी. नहीं ऐसे कोई बात नहीं है दीदी. आपका बहुत आभार. आइए, आभार तो मैं प्रस्तुत करूंगी आपको. रत्ना जी का बहुत आभार है कि उन्होंने इसको निकाला बाहर. हाँ, आइए. कोई बात नहीं है. बोलिए आप. मेरे सभी बड़े भाइयों और भाभियों, ताऊ जी को प्रणाम. जय श्री कृष्णा. मैं ऐसा तो कोई प्रिपेयर नहीं की हूँ. जनरल लाइफ अपनी जो होती है, बिल्कुल सामान्य ज्ञान बोलिए. हाँ, जैसा ने प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ सही भी एक बहुत बड़ा वरदान है. खुद ईश्वर है प्रकृति. हाँ, सबसे पहले हम वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं. और हम सबका प्रकृति के ऊपर ही जीवन निर्भर है. जैसे प्रवीण जी ने बताया, सूर्य, चंद्रमा. सुबह उठते ही जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले अपने पेड़ पौधों का नहीं जाते हैं तो कितनी ताजगी महसूस करते हैं. हरे भरे झाड़ देख के, अपने पेड़ पौधे लगाए देख के, वही हवा लेके हमारे में प्राण शक्ति बढ़ जाती है. और जैसे आजकल डॉक्टर भी बताते हैं, सूर्य में बैठो विटामिन D3 मिलेगा. ये पुरानी चलन है, प्रकृति की ही देन है. सेम कल शरद पूर्णिमा है. कल सभी अब रात को 12 बजे खीर जल रखते हैं. क्यों रखते हैं? चंद्रमा के वो दिन रात में 12 बजे के किरणों का क्या इफेक्ट है रात में.
वो जल साल भर रख के पीते हैं लोग। ये सब प्रकृति के लिए का ही है। और पेड़ पौधे जैसे नीम, गुलर, पीपल, बड़, ये सभी हमें ठंडक देते हैं और सब औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। पहले कोई रिजॉर्ट्स नहीं होते थे, बड़े बूढ़े सब इन पेड़ों के नीचे ही बैठ के अपनी मंडली लगाया करते थे। हम भी हमारे दादा नाना के साथ सब उसमें ही बैठे, गाय बनती थी वहीं सब बैठ के सुबह सुबह वहीं गाय का दूध निकाले और सबको पिला देते थे, जिसकी ताकत आज हम में है। और हमारी रसोई में जैसे लौंग, इलायची, मेथी, अजवाइन, ये सारे हम किसी न किसी रूप में ले लेते हैं, तो हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। हर किसी सब्जी में देखे कोई अजवाइन का छोंक लगाता है, उससे पेट सही रहता है। विटामिन डी के लिए पहले पान खाते थे तो चूने की भरपाई हो जाती थी, तो हमें अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। नेचुरली देखे घर में चोट लग जाती है तो झट हल्दी लगा लेते हैं, या चूना, गुड़ और हल्दी मिला के लगा लेते हैं। फोड़े फुंसी हुए वही रोटी बनाए तवे पे, जरा सा आटा डाला, पानी गूथा, वो पोटली बन लेते, उससे ठीक हो जाते थे। ये सब छोटे छोटे घर के उपाय ये प्रकृति से रिलेटेड है सारे। जैसे रत्ना दीदी ने बताया ब्लू बटरफ्लाई फ्लावर, ये थाईलैंड में मेरे घर के बाजू एक थाई पीपल रोज हमारे पास से ये फूल ले जाते थे। 8 साल की बच्ची कैंसर को उसको रोज चावल में बना के खिलाते थे। बिल्कुल डॉक्टर वहाँ बताए उनको। और हम लोग उसका पानी बनाते हैं, ब्लू पानी को पीते हैं वहाँ उबाल के, और उसमें ही लेमन डाल दो तो वो पिंक हो जाता है। यही बॉटल्स आपको एयरपोर्ट पे कई रुपयों में और कई नामों से मिलती है। और मुलेठी है, जैसे मुलेठी का पानी उबाल दो येलो बन जाता है। ऐसे तो कोई नहीं पीते, लेकिन इसके मेडिसिनरी उससे आप देखो तो बच्चे भी पी लेते, एक दिन पिंक, एक दिन येलो, एक दिन ब्लू, ऐसे। और जैसा सुरेश जी ने बताया गायों का, मेरे भाई को पैनक्रियाज इंफेक्शन हुआ, वहाँ डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया वो गौमूत्र और हल्दी का बनाया हुआ था, जो मेडिसिनल था। वो जब उसका पड़ा तो सब ताजुब करते रह गए, लेकिन मेडिकल वाले ये कोई चीज बताते नहीं है। पैनक्रियाज इन्फेक्शन में उसको लगा था ये इंजेक्शन। और प्रकृति में हमारे ऋतुओं का भी बहुत महत्व है। जैसे होली के बाद बासोड़ा आता है, वो क्यों महत्व है? एक ही दिन हम बासी रोटी खा के पचा सकते, बाकी दिन हम बासी चीज खाओ हमें गैस हो जाती है, वो दिनों में नहीं होती है। जैसा वर्षा ऋतु में दिल्ली में आज बारिश हो रही, बताए सब पकोड़े 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 क्यों खाए बारिश में? प्रकृति के वो नेचर में ही ऐसा है कि आपका वो खाया हुआ तला हुआ भी पचा देगी। और पारिजात का जैसे बताया, ये चिकनगुनिया में मैं मेरे परिवार के सभी मेंबर्स को चिकनगुनिया हुआ जब जोड़ों के दर्द के लिए रोज सुबह 4 से 5 पत्ते उबाल के देती थी। कोई हम लोग एलोपैथी दवा नहीं लिए थे। और हाइबिस्कस का मैं खुद ली हूँ, 108 पत्ते हाइबिस्कस के पत्ते, 108 तुलसी के पत्ते छांव में सुखा के रोज 1 चम्मच सुबह छाछ के साथ। पूरा पेट का इन्फेक्शन मेरा भी निकला है। पीपल को भी हम कमले पत्ते रोज खाते हैं। हाँ, वेरी गुड। पीपल भी जैसे सुबह हार्ट की जलन के लिए। और नर्वस सिस्टम में परसों मेरा एक बहुत अच्छा सुनाया नहीं, मेरे कजन बुआ को पैरालाइज हुआ। हम इमीडिएट उनको नाक में 4-5 घी घर का देसी गाय का बना हुआ रहता है मेरे कम डाले, उनका पैरालाइज्ड अटैक रुक गया। डॉक्टर खुद ताजुब कर रहा है कि ये ऐसा कैसा हो गया, स्ट्रोक आके रह गया कैसा, उनको आगे नहीं बढ़ा। ये सब हम छोटी छोटी। और जैसे पर्यावरण बचाने को पहले नॉन वेज का भी बहुत आ रहा है आजकल, ट्रेन में भी चल रहा है आपको फॉर्म भरने कि आप नॉन वेज अवॉइड करो, ओजोन बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग करो। मैं भी जो कैब में जाओ, ऑटो में जाओ, जो सिगरेट पीता है उसको रिक्वेस्ट करती हूँ, गुटखा यहाँ बहुत गुटखे बहुत खाते हैं लोग, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने साथ अलसी के बीज और सौंफ रखती हूँ। हाँ, अलसी का बीज तो नहीं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बोलने से नहीं सुने। बेटा ये मत खाओ ना बोलते, मैं अपने साथ अलसी बीज और सौंफ लेके चलती हूँ, उन सबको देती हूँ पैकेट्स
कि बेटा ये ले, नहीं अरे मिला तो वाह, मेरे क्या पास बात है। फोन कर, मैं भिजा बहुत दूंगी। अच्छा। आजकल तो रैपिडो बहुत चलता है। हाँ, और मैं अपने बहुत घर में अच्छा। छोटे छोटे पौधे लगाती हूँ, हर गार्डन में जा जा के माली लोगों से लगवा देती हूँ। खजूर है, क्या बात है, ये बढ़िया खजूर जी। का पेड़ है, यही बर्ड्स आने बहुत के लिए अच्छा। मेन। यहाँ पे चिड़िया बंद हो गई है हैदराबाद में, तो चिड़िया आने के लिए छोटे छोटे पेड़ लगाने से उस पे चिड़िया आएंगी। पक्षियां रहे नहीं, अभी कबूतर भी सब पालने लग गए अपने ग्रहों के हिसाब से कबूतर उनको ज्यादा दाना हो, डालने के हाँ, लिए। कबूतर लेकिन ज्यादा हो। हाँ, तो कबूतर रहना उतना अच्छा नहीं है। पहले सिर्फ मस्जिद में कौवा होते थे चिड़िया, कबूतर। हाँ कौवा चिड़िया अभी ज्यादा। चिड़ैया के लिए मेन हमारे को कृष्णा जी चुप रहिए पौधे थोड़ा। लगाने हैं। सविता बहुत अच्छा तुमने बोल कर, बहुत अच्छा। सुपर ये उत्तम। सब मैं अपने, आप कुत्ते का बता रहे हो, कुत्ते की जीभ से भी यहाँ मल्लम बनती थी पहले, घाव पे लगाते थे, तो बोलते थे कुत्ते की जीभ की मल्लम ले आओ। तो ये दवा साज वालों का नहीं मिलती थी। बस ये भी एक बहुत जीव जंतु का भी कुछ ना कुछ हमारे को फायदा ही हुआ है। ठीक है, अभी इतना वाह ही। सविता, तुम तो छुपा रुस्तम निकली। बहुत कुछ आता है इसको, ये बोलती हमारी है, रसोई में बहुत इतना बढ़िया। वैद्य की सामान कहते है। क्या, वेरी नाइस बकरी सविता, अगर वेरी पालो ना नाइस। तो टीबी नहीं होती है। बकरी बहुत अगर बढ़िया, पालो बहुत पालो, बढ़िया। ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छे रजनी जी, बहुत एक्सीलेंट अच्छा। सविता बहुत बहुत अच्छा बना। सविता जी वेरी नाइस। सविता, दालचीनी भी बहुत एक बहुत चीज अच्छा और- बोला सविता, वेरी नाइस, वेल नाइस। स्पोकन, बहुत अच्छी तरह बोला। वेरी नाइस, एक वेरी चीज नाइस। बोलना चाहूंगी, मैं 3 दिन के नीचे गिर गई थी फ्राइडे स्कूल पे से। तो अच्छा। मैंने एक एलोपैथी नहीं खाई, गिरते ही 10 हम्म। मिनट में मैंने हल्दी का दूध पी लिया पहले तो। उसके बाद तिल्ली का तेल गरम कर करके लगाते रही। आज 90% ठीक हूँ। सब बोले फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे कराओ। चलना नहीं आ रहा था, खड़े होना नहीं आ रहा था मेरे को। सिर्फ तिल्ली के तेल की मालिश क्यों, गर्म पानी से सेके और हल्दी का दूध क्यों। वेरी गुड। ये सब बहुत घरेलू बहुत अच्छा। एक एंटीबायोटिक है। अब बहुत बढ़िया। अब मैं प्रवीणा जी को बुलाती हूँ। प्रवीणा भीमसेन जी, आइए। सविता जी वंडरफुल। थैंक यू जी। प्रवीणा भीमसेन जी आइए। देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, प्रवीणा जी आप पढ़िए। हाँ जी, थैंक यू रत्ना जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। स्वागत है। काश प्रकृति के प्रति इतने सुंदर विचार, इसके प्रति इतना आदर, इतना ग्रैटिट्यूड हम दूर दूर तक फैला सकते, और खासकर उन लोगों तक फैला सकते जिन्हें प्रकृति की कोई कदर नहीं है, तो दुनिया ही कुछ और होती। प्रकृति में इतनी शक्ति है कि इसकी सुंदरता को जितना देखें उतना ही कम है। आंखें कभी थकती नहीं, मन कभी भरता नहीं। प्रकृति के साथ मनुष्य का एक अटूट बंधन है, तो हम इस बंधन को तोड़ने का सोच भी कैसे सकते हैं। इसको बचाना है और बचाएंगे। इसी के साथ मैं एक कविता प्रेजेंट कर रही हूँ, और ये कविता भी कुछ ऐसा ही विचार प्रकट कर रही है। और ये कविता किसने लिखी है मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये सूरज, ये चंदा, ये बादल घनेरे, ये सूरज, ये चंदा, ये बादल घनेरे, ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की लहरें, ये झीलें, ये झरने, ये रंगी तराने, घने जंगलों में है पंछी टहकते, ये तोता, ये कोयल और बुलबुल के गाने, वनों में है हमारे वनराज के पहरे, ये हाथी, ये बंदर, ये भालू और शेर की दहाड़े, हिरण भी तो भरते रहते हैं कुलाचे मतलब छलांगे। ये प्रकृति माँ के वरदान अनोखे हैं, बचा लो इन्हें करके लाखों तरीके, बचा लो इन्हें करके लाखों तरीके। फूलों की बहारें, फलों के रंगी नज़ारे, ये बहारें, ये मौसम के खूबसूरत फसाने, ये जुड़ाव, ये बंधन है प्रकृति माँ से हमारा, बचा लो इन्हें करके
प्रयत्न और संपन्न, बचा लो इन्हें करके प्रयत्न और संपन्न। ये कविता लिखी है नन अदर देन हमारी रत्ना अग्रवाल। तालियां। धन्यवाद। रत्ना अग्रवाल ने लिखी है जो मैंने रिसाइट की है। बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी थैंक यू, थैंक यू। रत्ना अग्रवाल जी को तालियां बजाइए। प्रवीण जी आपने बहुत अच्छा बोला। आपका प्रवीणा जी धन्यवाद है, आपने कविता प्रस्तुत करी, बहुत अच्छा बोला। रत्ना जी वेरी वेल डन। जितनी अच्छी तरह लिखा उतनी ही अच्छी तरह बोला भी। इट वाज रियली म्यूजिक टू इयर्स, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, रत्ना बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। वो संपन्न ही समर्पण है, समर्पण भी समर्पण। सोच रही बचा लो इन्हें प्रयत्न और समर्पण। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने इससे अच्छा बोला, बहुत बहुत अच्छा। प्रवीण की बहुत सुंदर पढ़ी आपने। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार आपने इतने अच्छे से रखे। मंजू जी, बहुत अच्छा बोला। प्रवीणा जी बहुत अच्छा। प्रवीणा भीमसेन जी। मैंने सोचा ये तो से इंग्लिश में लगा देते हैं, राम को रामा वैसे लगा होगा। प्रवीण जी हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बोला। ये रत्ना जी ने इतनी अच्छी तो बोलनी ही थी। उन्होंने इतनी अच्छी लिखी तो अच्छी तो बोलनी ही थी। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला था, बड़ी पोएटिक था आपका भी प्रवीण जी, आपका भी। थैंक यू मंजू जी, आपने तो आज बहुत बढ़िया हमें ज्ञान दिया, सच में बहुत बढ़िया। अब शर्मिला जी को बुलाती हूँ, वो बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। शर्मिला जी आइए। हाय शर्मी। शर्मिला जी फ्रॉम Thank you so much, Ratna ji, and good evening, everyone. Good evening. The topic for today is blessings of nature and how to save nature. क्या वजह है वहाँ? Well, let us imagine a scene. Let us imagine a scene. It's morning, early morning, and you are off for a morning walk to the park. As you pick up your shawl or your muffler, and you reach for the door, you realize that the newspaper has arrived. So you pick up the newspaper and just glance through the headlines. Headline number 1. Broken glass pieces, broken plastic bottles, soiled baby diapers were found in the streams at Sahasradhara, Dehradun. It can be any dhara and any city. Another headline you see, sand mafia has become active again on the banks of river Yamuna. You turn the page, untreated sewage is flowing into the rivers. You look at the top corner, air pollution levels today. AQI in Delhi, AQI in the NCR, AQI in Mumbai, so and so forth. Anyways, you have to go for the morning walk. So you step out of the door and reach the park. You meet your group of friends, and while you are walking, the discussion begins. Oh my God, have you heard? I think global warming is becoming a serious issue. Yes, another person says. And where are the sparrows and the honeybees and the butterflies? Haven't seen them in a while. कहाँ क्या? मतलब दिखते ही नहीं है आजकल तो. Another person says, did you hear? They are again going to cut 500 trees to make a road. And so on. It goes on. So friends, I think we get information every day on how things are deteriorating. But the question is, if everyone is conscious, if everyone is aware, then who is the culprit? Who is the one who is troubling nature? Here, I'm reminded of a few lines which I read some time back. Quote, now that we have learned to fly in the air like birds, and to dive in the sea like fish, only one thing remains to learn, that is, to live on this earth as humans. Unquote. Come to think of it, Mother Nature is very self-sufficient, very capable of taking care of herself,
and to even sustain herself. Her mechanisms, her cycles are well formulated. The planetary system, the cycle of day and night, the cycle of the water, the cycle of the seasons, the food chains of her animal kingdom can be run even without the intervention of man, not required really. And so I would rather look at the concept of how to save nature as how not to harm nature. I will also say, let the government and the authorities formulate their policies and implement them to save nature. But let the people in their own capacity as individuals, as responsible individuals, contribute their might by way of good habits and responsible ways. So today, I shall not name the big concepts or the jargons of global warming, the greenhouse effect, the ozone depletion, the deforestation, etc., etc. Let us practice what is closer at hand. The first thing which comes to mind is the 3 R's, that is, reuse, recycle, and reduce. Friends, if each family, if each person, each adult, each child follows this and imbibes this in their routine behavior, I am sure this will do a great service to our nature. Then there is conservation of water. Save water and waste and do not waste, avoid waste. Disposal of waste in a responsible manner is required so that our rivers, lakes, and oceans are not contaminated. Then comes care for trees and plants. Like everybody before me has said, we have to love them and we have to help them grow. Then there is judicious use of electricity. We all know it cannot be stored in godowns and we cannot store it back in our locker rooms in our homes. So we have to avoid wastage and we have to make sure that our electrical appliances are safe enough and do not emit contamination to the environment. Then there is judicial use of fossil fuel. True that cars, trains, aircrafts, and even industries, they need the fossil fuels and they are essential. But let us also keep in mind the factor of pollution. Let us use the humble bicycle and our own 2 legs also. Friends, and I think no talk can be complete if we do not mention about plastic and its disposal. Plastic is definitely important. We cannot do without plastic. But its disposal is what is causing trouble to our environment. So we have to keep that in mind. Friends, the list here is only representative. It is not exhaustive because जितनी बातें हैं और भी इससे बढ़कर ही और होंगे और तरीके. The fact persists that we have to hand over the earth to our children and our grandchildren and teach them to love Mother Nature and to live more and more close to nature in harmony. Thank you so much. बहुत बढ़िया शर्मिला जी, Very nice. इतना सुंदर बोला है आपने. वंडरफुल शर्मिला जी, बहुत बढ़िया. Up to the point and up to the heart of us. Very good. व्यक्तिगत तभी ज्ञान. Thank you so much. Everything, yes. It was so informative. बड़ा short, brief और to the point. बहुत अच्छे. Very nice. बहुत बढ़िया. Very thoughtful, Thank you so much. Thank you so much. Sharmila, very Your presentation is Practical. very It's the practical aspect she has put. Really. Very good. very nice. very well said. अब मैं सानंदा जी को बुलाती हूँ. प्लीज सानंदा जी आइए. सानंदा जी. सानंदा. सानंदा, हाँ आइए. कहीं से किसी के माइक से आवाज आ रही है. हाँ. स्वागत है आपका. आप अपने विचार प्रस्तुत करिए. नमस्ते. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Good morning. Not easy. I This was is traveling by road Oh, and I the see. spectacle before my eyes, अरे वाह. the ripe crops of rice fields, lush green
of different shades. Some Yes, of them yes, ripe very and some beautiful. of them growing in the fertile plains of Bengal after the rain wash of the countryside. Sanjana, you can show the next one. Wonderful. The next, okay. So आज धान खेत के धूप छाव में लुका छिपी के खेल है भाई, लुका छिपी का खेल। नील नभ में कौन डाला है श्वेत मेघ की नाव, वो भाई लुका छिपी का खेल। आज मधुप फूले मधुपान के मस्त ज्योति में भरी उड़ान, आज किसके लिए नदी किनारे ये चकवा चक का मेल है भाई, चकवा चक का मेल। आज घर लौट के जाना नहीं निज द्वार, आसमान भेज कर लूट लेंगे वातावरण बहार। जो ज्वार के पानी का फेनील फुहारे फैला दे, हंसी की हवा लहरा दे, तो बिन कारण बांसुरी बजा के फिरे हम सुबह शाम भाई लुका छुपी के खेल। लुको चोरी खेला आज धान खेते रुद्र छाया, लुको चोरी खेला रे भाई, लुको चोरी खेला। नील आकाश के भाषाली सादा मेघ भैला रे भाई, दुख चोरी खेला। आज भ्रमर भोले मधु खेते उड़े बेड़ाय आलोय मेते। आज কিসের তারে নদীর চরে চোখা চোখের মেলা, নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘে ভেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা। Thank you. Wow, wow, Look बहुत सुंदर। deep into the nature and you will understand Very everything good. better. This Very is what nice. Einstein had said. Now I'll start with some quotations from famous Okay, people. okay. To walk in nature is to witness 1,000 miracles. Come forth into light and let nature be your teacher. In words of William Wordsworth. Can you hear me? Yes. Yeah, yeah. Surely, yeah. Yeah. Every bit of nature is a blessing and a great place to heal and recharge. On the earth, there is no heaven, but there are pieces and bits of it. We are blessed on this planet with small glimpses of divine. Knowing trees, I understand the meaning of patience. Knowing grass, I appreciate persistence, says the poet. Hail the blessings of nature for sustenance of life. Oh, the morning sun and the clean air, I'm grateful to you for your light, your warmth, freshness, and oxygen that is giving me life to survive. The vast sky, I'm grateful to you for the depth of love. The rains, a prime life giver, which makes our crops grow, gives us food. I'm grateful to you. I'm grateful to the glaciers, rivers, waterfalls, and oceans for the generosity of water to quench my thirst. I'm grateful to the trees bearing fruits and nuts and providing shade and logs of wood for our homes. But as man invented more and more, nature has been constantly abused, and rampant deforestation and carbon emissions, our ozone layer above the atmosphere is depleting, and man has reached a stage where he is unable to control global warming. So we have to utilize these natural sources of renewable energies, the sun, the wind, the water, and the rain,
to run our machines and generators and stop using fossil fuels and reduce consumption of coal and fossils and the petroleum for a better living. I had to mention you two things which I'm at the last of this session, but there are two things which nature gives us: the dispersal of seeds. The dispersal of seeds by wind, by the birds, by the bats and rodents, creating the births of plants from faraway places to reach the soil. And lastly, the herbs and the plants are generating medicines, curing man from diseases for many generations. This process has been taken forward in the aspirin, the quinine, the penicillin, and the drugs to cure our diseases. And to a greater extent, the pest control. The agricultural pests have natural enemies, along with birds, bats, spiders, parasitic wasps. They can also disturb the ecosystem. And last but not the least, the fisheries. The humans turn to river and sea for food, and the fish keeps the water healthy. So friends, love your nature, because we are blessed by the nature. Yes. And let us see that the trees flourish and the birds can sing, and we can observe the bounties of nature that we get, that God has given us. Thank you very good, very good. बहुत बहुत बधाई. Nandita, so well spoken. बहुत अच्छा बोला आपने. And that song also. आज धानेर Song is very beautiful. Good. That's so good. या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति I took the opportunity to sing because I went to Shantiniketan, which is the Rabindranath Tagore's ashram, and it was so beautiful, and the nature is around is so beautiful. So I had to sing a little bit of Tagore's song. Thank you. Very nice, Ananda. Excellent. बहुत बढ़िया. अब मैं अंजलि जी को बुलाती हूँ. अंजलि श्रीवास्तव जी. अंजलि श्रीवास्तव जी अपने विचार प्रस्तुत करें. अंजलि जी आइए. हाँ, मैं प्रेजेंट हूँ. नमस्कार सबों को बहुत बहुत अभिनंदन. इतना कुछ बोला जा चुका है कि मुझे लगता है कि मैं बस अब सबको कंपाइल करके अभी सारित कर दूं पूरा कंट्रोल कंपाइल्ड प्रेजेंटेशन. मैं बस 2 लाइन से शुरू करती हूँ. मैं प्रकृति की सुंदरता पर तो बहुत बातें हो चुकी हैं और उनका वो तो अनंत है, जितना बोलते जाएं कम ही होगा. थोड़ा सा मैं स्ट्रेस दूंगी, एम्फसाइज करूंगी कैसे बचाएं हम प्रकृति, व्यवहारिक रूप में हम कैसे प्रकृति को बचाएं. तो मैं शुरू करती हूँ 2 पंक्तियों से. प्रकृति को हम क्या बचाएंगे? प्रकृति ने ही हम सबको बचाया है. हम तो बस बर्बाद कर रहे उसको जो प्रकृति ने हमें जीने के लिए बनाया है. जल, जंगल, जमीन, हवा, जानवर, स्वरूप, खजाना अनमोल फैला दिया धरा पर कुदरत ने. आओ अब बस करें इन्हें बर्बाद करना. आओ अब बस करें इन्हें बर्बाद करना. यही इतना कर लें हम तो संवर जाए यह धरती, यह दुनिया है इतना दिया हमें कुदरत ने. इसके साथ मैं शुरू करती हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं प्रकृति को बचाने के लिए. प्रकृति का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सीधे तौर पर संबंधित है. इनमें मुख्यतः पानी, धूप, एनवायरनमेंट, वातावरण, खनिज, सॉइल, वेजिटेशन और जानवर शामिल हैं. इनमें से कुछ संसाधनों के असीमित उपयोग से वे तीव्र गति से कम होते जा रहे हैं. हमें प्रकृति के संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए तथा पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. प्रकृति के संरक्षण का मतलब है किसी के मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से बनने वाले संसाधनों का संरक्षण, जैसे एयर, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा. प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके हम प्रकृति को बचा सकते हैं. प्रकृति के संरक्षण का अभिप्राय है जंगलों, भूमि, जल निकायों,
वाटर बॉडी जिसको कहते हैं, आदि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। खनिजों, ईंधन दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स, प्राकृतिक गैसों जैसे संसाधनों की सुरक्षा से है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये सब प्रचुर मात्रा में मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। आज हम कुछ ऐसे सर्वसुलभ तरीकों को देखेंगे जिससे आम आदमी प्रकृति के संरक्षण में मदद कर सकता है। जैसे पानी का सीमित उपयोग, बहुत ज्यादा पानी आजकल शावर बाथ का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, ये इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन पर पानी का खपत कम करने के उपायों को, किसी की आवाजें आ रही हैं कुछ। बिजली की खपत को कम करना, बिजली का सीमित उपयोग करना, प्लांटेशन एंड इंक्रीज वेजिटेशन को व्यवहार में लाना। बहुत तरह से हम प्लांटेशन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही छोटे छोटे किचन गार्डन्स करिए, टेरेस गार्डनिंग करिए प्लांटेशन के लिए, बल्कि अब तो सॉइल एंड वाटर एंड प्लांट्स को कंबाइन करके हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, बहुत सारे तरीकों से हम प्रकृति को की जो कुदरत की देन है उनको बचा सकते हैं। पेपर एंड वुड को कंट्रोल यूज में ला करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को कंट्रोल करके, रेन वाटर कंजर्वेशन करके, उसके अलावा कुछ न्यू मेथड्स हम अपना सकते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे है क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉप कल्टीवेशन, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स का कंट्रोल यूज बढ़ाएं हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल करें, टू प्रमोट सोलर, एक्विटिक एंड एयर एनर्जी, टू कंजर्व फ्यूल एंड ऑयल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम दिन अपने व्यवहारिक प्रयोग में ला सकते हैं, दैट इज अवेयरनेस। हम अवेयरनेस किन किन तरीकों से, मुख्य तरीकों से ला सकते हैं, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अभी तुरंत किसी ने इसके बारे में बताया था। Then volunteer for cleanups in nearby communities, educate, conserve water, choose sustainable, जो चीजें हम सस्टेन कर सकते हैं पर्यावरण की बर्बादी से बचाए बगैर। Then shop wisely, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात किया गया, पर एक एस्पेक्ट जो हमारा अभी जो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए, आजकल सोसाइटी सिंबल, स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम जितनी चीजें हैं कल जो यूज किया हमने उसको अब हम नहीं यूज करते हैं। शॉप वाइजली, जितना आप वेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे उतना एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। तो डू प्लांटेशन, यूज लॉन्ग लास्टिंग हाई लाइट बल्ब्स, कंजर्व एनिमल्स, कंजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व नेचुरल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर हम देखें तो 12 तरह के सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैं जिनका यूज बहुत ही बुद्धिमानी से करके हम प्रकृति को बचा सकते हैं। सोलर पावर, बायोफ्यूल्स, बायोगैस, टाइडल पावर, हाइड्रो पावर, बायोमास, सोलर थर्मल पावर और विंड एनर्जी, फोटोट्रॉपिक्स, पंप स्टोरेज रिजर्वायर, जियोथर्मल पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा करके हम प्रकृति के संरक्षण पे बस एक छोटी सी कविता से मैं अपने आप को कंक्लूड करना चाहूंगी। आओ पर्यावरण बचाएं, बदलें हम तस्वीर संसार की, सुंदर सी प्रकृति बनाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही जहरीली, कमजोर पड़ रहा सब तन मन। समय आ गया है कि मिलकर हम सब एक साथ कदम बढ़ाएं, संदेश ये जन जन तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। प्रयोग करें गाड़ी का कम, पैदल चलने पर जोर दें, थैले रखें हम कपड़े के, प्लास्टिक का प्रयोग छोड़ दें जितना हो सके ऑफ कोर्स। हवा शुद्ध ही चाहिए सबको, पेड़ पौधा कोई लगाता है, अनजाने में सब रोगों को पास अपने खुद ही बुलाता है। हरियाली फैलाकर आओ सबको हम अब स्वस्थ बनाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। मत व्यर्थ करो जल को, जल है तो अपना जीवन है, प्रकृति ने जो हमको है दिया, सबसे अनमोल ये वो अंधन है।
सब जीवों को मिले बराबर, इस उद्देश्य को लेकर जल बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। माता है ये धरा हमारी, हम सब इसका सम्मान करें, क्यों बिगड़ रहे हालात प्रकृति के, इन बातों का हम सब ध्यान करें। भला हो जिसमें सभी जनों का, आदत हम सब वो अपनाएं, संदेश ये जन जन तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अति सुंदर, वेरी नाइस। प्रकृति और प्रकृति के बचाना है, हमें पर्यावरण बचाना है, प्लास्टिक का यूज करें, गाड़ियों का यूज करें, गाड़ियों के पॉल्यूशन से सांस लेना मुश्किल हो गया है। सही बात है, बहुत अच्छा। और प्रकृति के तो हर एस्पेक्ट को हम एक टॉपिक बना सकते हैं अपने नेचर क्लब में, एक छोटा से छोटा एस्पेक्ट, जैसे मंजू ने बताया कि एक हनी बी है, गाय है, एक एक चीज ले, एक एक कल्चर लेके चलिए। सारे कल्चर, सारे पशु पक्षियों को, इंसेक्ट्स को लेने लगे। केचुआ हमारे गार्डन को कितना उपजाऊ बनाता है। तो छोटे छोटे हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर ज्यादा ध्यान दें और मॉडर्नाइजेशन को थोड़ा कम करें, तो हम बहुत कुछ प्रकृति के लिए बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली थैंक यू सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा बोला। बहुत रंजना जी ने नहीं बोला है। नहीं, बस बहुत सब नए लोग बोले हैं। ओवर टू रितु प्लीज कम। सबने बहुत अच्छा बोला, सुंदर। रितु, वंडरफुल इवनिंग। इट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया रत्ना जी, बहुत अच्छा आपका। धन्यवाद सबका, बहुत सबके सहयोग से संपन्न हुआ। रत्ना जी बहुत। So, like I was mentioning, as usual, a wonderful session, and I think now I should just stop listening to the elders and they say, "Oh, हमसे तो नहीं हो सकता, हम तो नहीं कर सकते, अभी हमें टाइम नहीं हुआ, अभी तो हमारा ये नहीं हुआ." So, and every time we come up with a wonderful session, and each and every speaker is so good, and such relevant topics are chosen. And today again we had a wonderful session, Ratna ji. With some new speakers also, so that was really good. Yeah. So, Ratna ji, I'll just start with you only. आपने इतनी अच्छी सी एक पीपीटी दिखाई with all the flowers and everything, and telling us कि इनकी importance क्या है हमारी लाइफ में। हम सब देखते हैं। Those flowers are in our garden. Wow. So, मतलब वही मैं कहती हूँ, our house, my house garden. Wonderful. Very pretty, all of them. And हम लोग देखते हैं, स्मेल भी करते हैं, खुश होते हैं देख के, बट कुछ फ्लावर्स की शायद हमें अहमियत पता होती है, बाकियों पे शायद हम इतना ध्यान नहीं करते। सो आपने बड़े सारे फ्लावर्स की इतनी अच्छी इम्पोर्टेंस एंड ऑल्सो बताया सारा कुछ एंड दिखाया भी। सो इट वाज ग्रेट टू सी एक पीपीटी में जैसे आपने डाला। सो दैट वाज अ वंडरफुल स्टार्ट। Then coming to Kamlesh ji, can we just hang? So Kamlesh ji ने भी बहुत ही अच्छे से नेचर की ब्लेसिंग्स के ऊपर बात करी। हाउ we are destroying the beauty of nature, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैजर्ड की वजह से हो या हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कुछ भी है, बट ये हमारा डेफिनेटली फर्ज है कि हम ध्यान रखें अपने नेचर का, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जनरेशंस भी इसी पे डिपेंड करेंगी। एंड इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ इट नाउ, देन things are going to get destroyed and ultimately we will suffer from it. Praveen ji again beautifully said, learning from nature. हर चीज हमें क्या सिखाती है, नेचर में जो चीज भी भगवान ने बनाई है उससे हम क्या सीख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, बड़े ब्यूटीफुली आपने हर एक चीज के बारे में बताया, चाहे वो माउंटेन्स हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, चाहे वो द एयर विच इज फ्लोइंग एंड ऑल दैट। एंड वाकई में अगर हम ये सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक वी विल बी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। बट ये समझने वाली बात है, एंड जो हम देखते हैं फील करते हैं वो तो होता ही है, बट येस अगर हम सीख सकें, सो नथिंग लाइक इट। एंड द ब्यूटीफुल पोएम जो आपकी इसी सब बात को इट काइंड ऑफ
got everything into that little poem. So Thank beautifully you. said as बहुत usual. अच्छा So, बहुत अच्छा बोला। हाँ, पता नहीं है कहाँ से निकाल के लाती हैं सब कुछ जो रेलेवेंट होता है। No, every time you know सबका होता है, जैसे सुरेश जी also speaks very relevantly and with full. So प्रवीण जी का भी है, सबका अपना अपना वो होता है। So you know, but very nice and बड़ा हटके भी हमेशा होता है। बहुत अच्छा बोला। So very nice. And many thanks to you. Thank you. To whom? To Ritu? No, to you Praveen ji. Okay. आपको thank you बोल रही हैं। Thank you Ratna ji for having me in your program. Thank you. So सुरेश जी, उनका मैं क्या बोलूँ, again she also is a wonderful speaker and हमेशा एक relevant topic को लेके आती हैं। इस बार उन्होंने you know हम जैसे गौ माता कहते हैं उसका सारा कुछ इन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब करा एंड पता हम सबको होता है, but the way it is put across, you know, it is so beautifully done. And सुरेश जी, मैं हमेशा आपको admire करती हूँ इस चीज़ के लिए, the way you know get your whole thought process into that, the way you speak about it with so much of passion. You know, it is really wonderful to see that. And पूरा आपने जो relate करा कि पुराण साहित्य में क्या लिखा हुआ है, कैसे ये है, so you know, very beautifully done, सुरेश जी. And आप ऐसे म्यूट पे हो सुरेश जी, but I could make out आप क्या कह रही हैं. मैंने कहा वेदों वेदांगों में उपनिषदों में जो जो कुछ आया, I went through, I read it, and महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र और संस्मरणों में गोरा के लिए बहुत लिखा है कि मेरी गाय इतनी सुंदर थी और उसको कोई गोपालक मार गया था खाली थोड़े दूध की, हमारा दूध पीके और इनकी गाय मर जाए, तो कैसे वो तड़प तड़प कर मरी। तो मुझे वो वाली बड़ी उत्प्रेरक लगी, तभी मैंने इस विषय को लिया कि हमें गाय बचानी चाहिए। और गाय के गोबर से अभी हमने बड़े दीवे बनाए, कागज बनाए। हमने वैधशाला में हम गए थे जहाँ गौशालाएं पाली जाती हैं, उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, तो हमने देखे कि गोबर से क्या क्या नहीं बन सकता, सबसे अधिक चीजें उन्होंने बनाई। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। So, but very well spoken, and you know, lot of inputs that you gave, lot of knowledge, you know, so wonderful, Suresh ji. Sharmishta ji, again talking about nature, कैसे हम इसे destroy कर रहे हैं, and industry base से कैसे सारा कुछ ये pollution वगैरह हो रहा है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. And I think industries अपने you know, to earn money and to you know do that, I think बहुत ज़्यादा nature को destroy करती हैं and responsibility नहीं लेती हैं. So of course there are some companies which take full care of it, but yes, it is definitely our duty कि हम इसको अच्छे से you know protect करके रखें. And we as common people also need to talk about it and not just take it for granted. একটু আমি আমার পাশে বসো তো। Swarna ji. Mosho. So thank you so much, Sharmisha ji. Beautifully spoken, and lovely to have you. You know, being a part of this so early also. But आप हर एक में बहुत interest से करती हैं. So wonderful to see that, and you please keep participating. So great, thank you. And Manju ji, again, I think बहुत ही different topic आपने आज लिया. You know, bees के ऊपर मतलब एंड इतना कुछ आपने बताया, शायद हम बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पूरे बीज के साथ क्या इनके फायदे हैं, कैसे पूरी नेचर की साइकिल इससे इफेक्ट होती है, छोटी छोटी चीजें आपने जो बताई, नहीं तो शायद हम लोग सब बेसिक सब हम लोग वो कहते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग और बहुत भी नॉलेज। मेरे बेटे का फ्रेंड है, वो बी कीपिंग करता है। He has got 17 degrees, but he bee keeps, मतलब हिमाचल में, और वैसे वो मुंबई में भी एक फिल्म में भी काम किया है, 3 सीरियल्स में भी किया है। रात को मैंने 12 बजे उससे पूछा, मैंने कहा इकबाल मुझे बताओ, और अभी फिर नाम भूल गई, वो रॉयल जेली है प्रोपोलिस, उसने दोनों बताए, मैंने जस्ट लिखा, मैं नाम भूल गई। उसने इमीडिएटली मुझे लिखा ड्यूरिंग माई दिस, जस्ट बिफोर माई दिस नंबर। तो मैंने बहुत अच्छा बोला आपने मंजू जी, बहुत बड़ी बल्कि बहुत अच्छी चीजें आपने बताई मंजू जी, एंड वेरी वेल स्ट्रिक्टेड, वेरी यू नो कंसाइज, एंड यस यू सेड सो मेनी थिंग्स
बल्कि now that you've mentioned it, I think we can have a tour of his bee farm also, where he can showcase everything वो वहाँ क्या क्या करते हैं. That will be wonderful to see. But very beautifully spoken मंजू जी. And कैसे आपने बिल्कुल बहुत ही जैसे पूरा ह्यूमन लाइफ का पिरामिड कैसे इससे बनता है और कैसे हमारी लाइफ इनसे चेंज होती है, पूरा ये साइकिल आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया. So thank you so much. A very, very knowledgeable and informative session that we had. Keep on encouraging like that only. Neurons regenerate हो जाएंगे. जो degeneration हो रहा है ना brain में, वो that will regenerate. यही हमारा एम है, ताकि आप हमेशा, जैसे किसी ने मुझे कहा था कि रितु you got us back to the books and you started making us research and do so many things which we had forgotten, and that is the whole aim. But I'm glad that you all enjoy doing it, because I know at times it does take a bit of effort. That thing we people call that dementia को हम Alzheimer बोल देते हैं. That is not Alzheimer. Just we cannot recall the things. ये होती है समय. डॉक्टर ग्रेवाल ने भी यही बताया. खोद के निकाल रहे हैं हम लोग चीजें. अपना डीप जो बर्न हो गए थे उनको निकाला जा रहा है. सही है. एक्सकवेशन हो रहा है. एक्सकवेशन. चलिए, हाँ जी, before let's quickly end. It's almost 7 o'clock now. So there was a long list and wonderful speakers, but let me just speak about everyone. So Savita ji, great to have you. Finally speaking. आप हमेशा वो करते, ऑफ कोर्स लास्ट टाइम आपने वो पोएम एंड वो झूले की पूरी बात बताई थी मॉनसून के टाइम पे, बहुत ही खूबसूरत सी. बट आज आपने इतना सारा ज्ञान दिया पूरा घरेलू टाइप का, एंड हाउ विद एग्जांपल्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट कि ये सब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं थी, and everything that you spoke, you had experienced it or somebody in the family had done it and you really believe in it. तो आपने बहुत ही अच्छी चीजें बताई, बहुत ही ना, जैसे हल्दी का दूध है, ये सब हम लोग बात करते हैं, और आपने कहा जैसे आपको इतना फर्क पड़ रहा है, बट लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि कैसे ये सब चीजें अगर हम नेचर में जो दी हुई है उससे हम लोग कैसे इतनी जल्दी हील हो सकते हैं. हमेशा एलोपैथी पे नहीं डिपेंड करना चाहिए. एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि आपने एक की आपके ये किस रिलेटिव को क्या हुआ था एंड क्या हुआ, जो कि डॉक्टर्स नहीं बताते हैं. एंड स्पेशली दैट थिंग, ऑफ कोर्स गौमूत्र हमने बहुत बार सुना है कि it has medicinal values and everything, but especially in villages and all we see it, but injection भी उसका लग रहा है, और how it is healing and all that. And other things जो आपने वो कैंसर के फ्लावर के बारे में बात करी, and even the colors that it gives, which is beneficial to our health. So बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी आपने हमें नॉलेज दी सारी, and very very interesting thing. I wish हाँ जी सविता जी बोलिए. रितु जी, मैं पूरे नेचुरल हूँ. सब घर में बोलते हैं मेरे को क्या बूढ़ों के जैसा रहते, ये नहीं करना. मैं ये मॉडरेट के हिसाब से चलते हैं, लेकिन घर में पूरा नेचुरल. हस्बैंड वाइफ को एक एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, बीपी शुगर टच को कुछ नहीं है, सब ताजुब करते हैं. नहीं, बट इट्स ग्रेट बिकॉज ये एक ऐसी नॉलेज है जो धीरे धीरे जा रही है. आप लोगों को फिर भी है, मे बी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, बट इफ आई स्पीक ऑफ जनरेशंस इंक्लूडिंग माय जनरेशन एंड द कमिंग जनरेशन, I think we are forgetting about all these things, and हम instantly डॉक्टर्स के पास जाते हैं, and we all want instant results and want दवाई खाई हम ठीक हो गए. So of course हम धीरे धीरे जा रहे हैं बैक टू नेचर. जब हम आयुर्वेदा कहते हैं या हम योगा वगैरह में, मेडिटेशन में, we are going back. But a lot of things like हम भी कहते दादी माँ के नुस्खे वगैरह जब हम कहते होते थे, ये घरों में बहुत ज्यादा होता था. इमीडिएटली कोई डॉक्टर के पास नहीं भागता था. कोई गिर गया, ये लेप लगा लो, इसका ये बना लो, ये काढ़ा पी लो, ऐसे ये कर लो. But again, it is something which is dying in our system now, especially in the metropolitan cities and all that. So it is very very unfortunate that ये knowledge हम लोग नहीं gain कर रहे हैं. मतलब fortunately for me, I get to hear a lot of it, but it is just by chance. So I feel very very grateful and thankful that I am getting to know so many things. But अगर हम normal life की बात करें, which is 2 years ago, अगर मैं अपनी ही बात करूं, so हम बहुत normal life में चलते रहते हैं, without getting into all these things and how beneficial they are, and we are not utilizing these things. That is very very sad. So, but very very informative, Savita ji, and I hope that you keep bringing this knowledge onto this platform, again also. So wonderful to hear you. Coming to Praveena ji. बहुत बहुत धन्यवाद है सविता जी का.
लास्ट मोमेंट तक कह रही थी मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरा नेट नहीं चल रहा, फाइनली फाइनली शी वाज हियर। बिल्कुल नहीं वो थोड़े से चलो बहुत अच्छा हुआ, बट वंडरफुल सविता जी, बहुत ही अच्छा था, जेन्युइनली मतलब लेकिन वेरी वेरी नाइस। सो प्रवीणा जी ब्यूटीफुली रेड आउट पोएम, एंड सबसे ब्यूटीफुल बात ये थी कि रत्ना जी की ये पोएम थी, यू मेंशन दैट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड आपने इतनी खूबसूरती से उसको पढ़ा भी, एंड द नेचर के ऊपर जो ये पोएम थी। बट रत्ना जी, वी डिडंट नो दैट यू राइट पोएम्स आल्सो, सो आपकी एक और फैसेट बाहर आया है। अभी बहुत साल बाद लिखा है, पहले लिखती थी मैं, अभी बहुत साल बाद अभी नेचर मेरे ऊपर आया ना काम, तो मैंने कर लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो एंड प्रवीणा जी ने उसको जो मतलब जैसे वो पढ़ा, आपके शब्द आपके थे, पर जिस इमोशन से उन्होंने पढ़ा, वेरी ब्यूटीफुल प्रवीणा जी, बिकॉज कोई भी लिखा, कुछ भी लिखा होता है, अगर उसमें वो इमोशंस एंड वो ना डाले जाए तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है बिल्कुल, यू नो। सो बहुत अच्छा बोला, सो शब्द आपके थे, पर उन्होंने बहुत खूबसूरत बोला। थैंक यू थैंक यू। I get emotional. Coming to Sharmila ji, again she's a wonderful speaker, and I love the way she starts, बहुत ही नेचुरल वे में, इट इज नेवर अ स्क्रिप्टेड थिंग, मतलब कि हम ऐसे करते थे और ऐसे होता था और ये है। सो बड़ी ब्यूटीफुली शर्मिला जी, and this is something that we all go through, कैसे हम लोग उठते, न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं और हम क्रिम मारते हैं, फिर हम बातें करते रहते हैं उसके बारे में, एंड पूरे हमारी जो न्यूज़ है, इट इज many a times it is a lot of negative news and all that, and जब हम मिलते भी हैं तो भी हम बस उसके ऊपर बात करके छोड़ देते हैं, एंड वी डोंट डू मच अबाउट इट, एंड हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन से हम कहते हैं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे ऐसा होता है, ये तुमने पढ़ा, ये सब बिल्कुल रियलिटी है, एंड यू लिटरली ब्रॉट इट आउट इन योर वर्ड्स, एंड बात वही है कि नेचर को हमें ही देखना है, हार्म नहीं करना है, एंड आई थिंक कुछ पॉलिसीज जब बनती हैं हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, कई लोग जाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, बट हर चीज की एक वजह होती है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन फॉलो दीज पॉलिसीज एंड बेसिकली लुक आफ्टर द नेचर व्हिच इज गिविंग अस गुड लाइफ, एंड हमारे हैबिट्स अच्छे रहेंगे, एंड हम अगर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, like हमारा लास्ट टाइम जो जैसे आपने कहा था, reuse, recycle and reduce the waste, so it is very very important. So thank you for bringing it out in such a beautiful manner, and thank you so much. You write very well, I must say that it is, it just kind of, it flows like a conversation, it just never looks like a scripted thing कि हम पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, ये आपकी खासियत है बिल्कुल। Thank you so much. So beautiful, and Sananda ji is very good. बिल्कुल, एंड कमिंग टू सनंदा जी अगेन, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ, the way she reads out a poem, the way she sings, the voice quality is so very good कि वो वैसे उसकी वो बदल देता है जिस तरह से हम उनको सुनते हैं, so always very nice। and जो poem आपने the way you said the poem and that Bengali song also, even if it's 2 paras and not, very very nice. Translated the Bengali to Hindi. Okay. Sort of. Sorry. So it is very amateur. But anyway, but it's still the effect still came out. And जैसे आपने कहा कि आप नेचर पे निकलो, आपको 1000 miracles दिखते हैं, so ये बिल्कुल सच बात है, ये कि बहुत कुछ है हमारे उसमें जो हम लोग जो हम लोग जैसे मुझे एक मेरे फ्रेंड है, वो बहुत फोटोग्राफी करते हैं, सो वो मुझे हमेशा भेजते हैं, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ही इज पोस्टेड इन असम, नॉट इवन असम, इन अरुणाचल, इन द एब्सोल्यूट डेंस जंगल्स एंड ऑल दैट, सच ब्यूटिफुल थिंग्स जो वो सेंड करते, कभी किसी बटरफ्लाई की, कभी कोई इंसेक्ट, एंड इतना कुछ है, आई एम अमेज्ड टू सी व्हाट वी हैव इन नेचर, एंड
कभी उनकी वो फ्लाइट के कभी हाउ दे आर रोलिंग अप, यू नो, जैसे इंसेक्ट्स भी रोल अप हो जाते हैं, और हाउ दे आर वॉकिंग, और हाउ दे, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे बटरफ्लाइज हैं, चाहे यू नो द लीव्स एंड द फ्लावर्स व्हिच यू नेवर सीन इन योर लाइफ. सो इतना खूबसूरत है नेचर. बस हमें देखना चाहिए, and especially in India we have so much that if we start going around and seeing, we see 1,000 miracles, as you said. And so thank you so much, Sananda ji, and thank you. And then of course we had Anjali ji, great to see you, being a part of this. You've just joined, but wonderful to see you in this. And सच बात है, जैसे आपने कहा, हम क्या नेचर को है, प्रकृति को बनाएंगे, उन्होंने हमें बनाया है. बिल्कुल सही है. आई थिंक बचाना है. बिल्कुल. सो अगेन हर एक चीज को हमें ढंग से यूज करना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में. एंड अगेन हाउ टू टेक केयर ऑफ नेचर इन ऑल द, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, चाहे क्रॉप रोटेशन की बात करें, चाहे, सो वेरी ब्यूटिफुली पुट अक्रॉस and very clear cut, I must say that also. So thank you so much. Very nice. एक्चुअली नेचर पे इतने एस्पेक्ट्स हैं, और हर एस्पेक्ट अपने आप में एक टॉपिक बन जाए अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो. एंड द अमेजिंग आल्सो, रियली इट वाज अ वंडरफुल सेशन, रियली. थैंक यू सो मच रितु. थैंक यू. So thank you so much everyone for bringing this wonderful topic also. एंड जैसे अंजलि जी ने कहा कि नेचर एक ऐसा टॉपिक है, जितना भी हम बात कर ले तो फिर भी शायद खत्म नहीं होगा, और कितनी बार. एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म इज हियर फॉर, wherein we can keep hearing lot of interesting things, getting to know a lot of new things, getting knowledge, imparting knowledge, and that is the beauty of this thing. So Ratna ji, once again, thank you so much for in this session. And of course, very quickly, I need to know who is the next moderator. ये अलका मागू जी रेडी हैं. अलका मागू. Okay, but she is not here. अभी थी, शायद नेट का प्रॉब्लम है कुछ, उनका भी नेट का इशू है. Okay. She is ready. I will Great. tell her. Wonderful. That will really be nice. It will be great to have her. So thank you so much everyone for this beautiful session. And हम सब नेचर की ब्लेसिंग्स को हमेशा एडमायर करते रहें और थैंकफुल रहें एंड ग्रेटफुल रहें. दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एंड वी ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नीड टू सेव इट. सो एक कोट बोलना चाहूंगी. नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ thoughtful committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has the capability of making these changes. So हम अगर अपना छोटा पार्ट भी करते रहें तो हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं. ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि what impact. सबका बहुत धन्यवाद. सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा बोला. ऑडियंस का भी धन्यवाद, मेरे सारे फ्रेंड्स का. बिल्कुल. So Ratna ji, thank you so much for a wonderful session, and I am also grateful. So now we will meet again on we will meet tomorrow morning at 8 o'clock sharp for a physiotherapy session, and 4 p.m. we have Dr. Gerewal session, and evening I see you all at 5 p.m. sharp. So till then, okay, bye and take care. Thanks Ritu. Okay, bye. What's there at 5 p.m? You can't reveal that? I can. We have Dr. Raj with us, who will be talking on Raj Manglani food. No, not Raj Manglani, Raj Nidamur. अच्छा. Doco 360 से पहले भी आए हैं. So उनका टॉपिक है food is medicine. Oh. Thank you so much, madam. Medicine की medicine. Bye. Good. बता सकती हूँ, वो तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए नहीं बताती. You should all feel क्या होने वाला है. So that is the reason. नहीं, because you said I will be there, तो मैं उसके prospect से पूछती हूँ हमेशा. Are you going to play some games with us, which you are not doing anything now these days? You are not playing Antakshari with us. You are not playing games with us. We are missing it very badly. It is planned. It is planned for Wednesday.
That is बस why. वेट करना नहीं, it is already planned for Wednesday. Twice a month we try and do it at least. You know, and of course Saturday को कई बार हम लोग singing भी करा देते हैं, but otherwise the interactive sessions we try and keep it at least twice a week. Okay. So this Wednesday we will have something interesting. दीपावली So till then, दीपावली सेलिब्रेशन क्या? दीपावली नवंबर में नहीं, गेट टुगेदर होने वाला कुछ प्लान वो टीवी पर नहीं, इन दिल्ली नहीं एज आई सेड हम लोग अभी हमने बस ये कुतुब वाला ट्रिप ऑर्गेनाइज करा था अभी करा दी कुतुब का करके और करोगे तो क्या in fact we had to postpone it till Thursday now because of the rains. So because it was still raining in the evening, pretty surprising, but that's how it was. So anyway, we postponed it till Thursday now. So hopefully we should be able to go on that day. So but आप लोग सब कहते रहते हो हमें मिलना है, बट आप लोगों में से किसी ने अप्लाई नहीं करा जितने भी मोटीवी पे आ रहे हैं। नहीं, इतना चलना चुलना नहीं होता हमसे, इतना नहीं चला रहे हम लोग। That is why it is specifically made for the elders trip and it is not here to walk so much. It is going to be very calm. वो देखा हुआ है इतनी बारी, तो इसलिए भी कुछ इंटरेस्ट ग्रुप में प्रवीण जी, ग्रुप में देखने की बात अलग होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ देखने की बात। अपने आप तो हम सब ने बहुत कुछ देखा हुआ है, बट साथ में जब ग्रुप पे जाते हैं उसकी मस्ती मजा ही कुछ और होता है। नहीं, सेकंड एक और जो प्रॉब्लम हम लोगों जैसे है कि रात हो जाती है, तो रात को अकेले आना, किसी के लिए जाना, वो थोड़ा प्रॉब्लम थी। इसलिए डे टाइम का होता है तो फिर भी यू नो फॉर लेडीज एंड ऑल। ये आप बताओ, मैं थर्सडे को मैं 4 बजे करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। 4 बजे करा के तो डिनर हमने 5 बजे खा लेना, अब 2 होगी है, अब तो डिनर भी दे रहे हैं। नहीं चलो, डिनर भी दे रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम वी विल सी। इस बारी होने दो जो हो रहा है। So it can either be a lunch or a dinner, but the beauty of seeing the Qutub Minar, you know, in the night yes, of course, with the lights and all. हाँ, so आप जब देखते हैं there are these restaurants away from it, so उसको अगर आप दूर से देखें, it is a beautiful sight. So थोड़ा हमारे लिए प्रैक्टिकल कई बार नहीं होता। आपकी कैब मैं बुक कराऊंगी प्रवीण जी, तो अरे कैब नहीं, ठीक है, तो ड्राइवर है। अच्छा, मैं छोड़ने चली जाऊंगी, मैं चलकर। ठीक है, अब आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। नाउ आई एम होपिंग टू सी यू देयर। मेरे को रोक कर बिल्कुल बिल्कुल, जो दिल्ली में एवरीबॉडी इज रोक्ड इन नाउ बिकॉज़ कुतुब मीनार। तो आया सिर्फ 2 मिनट। सूरी जी भी बता रहे थे कि रात में आना दिक्कत है, तो उनको छोड़ने भी जाओगे? उनके लिए भी, उनको भी बोला था कि कैब बुक हो जाएगी, बसेस बुक हो जाएंगी, बट आई नीड टू नो द नंबर्स। बट उन्होंने तो अप्लाई भी नहीं करा इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद। आप बोलो मैं छोड़ने आ जाऊंगी तो बुक कर देंगे वो। आ जाऊंगी ले भी जाऊंगी। हाँ, फिर ये बढ़िया होल डे एंड होल नाइट का प्रोसेस रहेगा, बिकॉज़ वन इज इन नोएडा एंड वन इज इन गुड़गांव। यस, तो कल पूरी को मैं जरूर पूछने वाली हूँ अभी। ही इज नॉट, सो वो तो पूछते तो हर चीज है, बड़े इंटरेस्ट से, फिर करते नहीं होते। कल पूरी इज बैक। कल पूरी आपने ऑप्ट नहीं करा इसके लिए? वो कहते हैं तो आपको देख लिया, कुतुब मीनार देख लिया। इतनी भी पुरानी नहीं हो मैं प्रवीण। वो हमें देख के कुतुब मीनार देख लेते होंगे फिर। एनीवे, चलिए, नहीं मजाक की बातें यार, अच्छा लगता है थोड़ा हंसी मजाक जिंदगी का। प्रवीण जी, आप तो आ रहे हो और कल पूरी को कॉल करके तुम्हें बुला रही हूँ, ठीक है ना? हरीश जी भी है उनके साथ। So anyway, चलिए, Kanalpuri, it's a yes from your side, right? My God, कौन चलेगा वहाँ देखने के लिए? I couldn't get you. I said जो कुतुब मीनार का ट्रिप है। Actually, I was keen to go. But मेरे अपने जो साथी हैं, वो सब ने अपना बैकअप कर दिया, तो I thought there's no point for me also to go then. ये भी बात। पूरी आपने बिल्कुल हमारी चौक कर दी है, बिल्कुल। नहीं, I am certainly very keen, ये ना कि मैं अकेला रह जाऊँ। I wanted some company also to go.
पकड़ो भाभी जी को और उनको कर्नल शर्मा को, आपके दोस्त हैं इतने पक्के इनको बहुत कोशिश की, सब लोग से कोशिश की। इनफैक्ट आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आपने तो नहीं बोला कर्पूरी जी। So Kalpuri Praveen ji is coming. Oh and my she's God. Yes, so now it is done. Kalpuri is also coming and Praveen ji is coming. And बाकी कुछ नहीं हुआ, स्वेटर मैं लाऊंगी अभी, ठीक है? So चलिए, let us end this session. Bye everyone, see you tomorrow and take care. Bye. Bye.